السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل، اکبر باغ، ملک پیٹ، کیو میکس خزرہ، ہمایوں نگر، رائل کالونی، کیو میکس پارک ویو، پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، کیو میکس مجیب، الکاپور مین روڈ، کیو میکس امپیریل، عزیزیہ مسجد، مہدی پٹنم، کیو میکس گیلیکسی، پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، کیو میکس امیزہ، عزیز باغ، شیخ پیٹ، کیو میکس عارف آرکیٹ، الکاپور مین روڈ، کیو میکس خادری، ستیہ کالونی، شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملا پلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ریاست تلنگانہ میں شروع ہونے والے SIR کے لیے انتظامات مکمل، عوام سے تعاون کی ریاستی الیکٹورل آفیسر نے کی اپیل، ووٹر فہرستوں کو درست اور شفاف بنانے کے لیے مہم۔ اتوار 21 جون کو ہونے والے نیٹ امتحان کے لیے غیر معمولی انتظامات، پولیس کی چوکسی، 22 لاکھ سے زیادہ طلباء کی شرکت متوقع۔ دوپہر 1:30 بجے کے بعد امتحانی مراکز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فصلوں کی خریداری میں حکومت ناکام، کسانوں کی خودکشی باعث افسوس، 25 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے، KTR کا مطالبہ۔ بوائے فرینڈ کی خاطر ظالم ماں نے اپنے 2 سالہ بیٹے کا کیا قتل، کیسرا پولیس اسٹیشن حدود میں شرمناک واقعہ، ملزمہ گرفتار، عاشق مفرور۔ ملاوٹی ادرک لہسن پیسٹ کی تیاری کا ایک اور کارخانہ بے نقاب، قدیم ملک پیٹ کے واحد نگر میں بھاری مقدار میں ملاوٹی پیسٹ ضبط۔ اور لینڈ سروے محکمے کے عہدیدار کی بیوی کے بینک لاکر سے 1.5 کروڑ روپے کی نقد رقم اور زیورات برآمد، ACB کی تحقیقات جاری۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ چیف الیکٹورل آفیسر CEO تلنگانہ C سدرشن ریڈی نے ہفتے کے روز BRK بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR کے عمل کی وضاحت کی اور عوام سے بھرپور تعاون کی اپیل کی۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ووٹر فہرستوں کو درست اور شفاف بنانے کے لیے یہ مہم شروع کی ہے۔
जिसका मकसद फर्जी, दोहरे और नाअहल इंदराजात को ख़त्म करना और तमाम अहल वोटरों के नाम शामिल करना है। CEO के मुताबिक ये अमल 25 जून 2026 से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2026 को हतमी वोटर फहरिस्त की इशाअत के साथ मुकम्मल होगा। इस दौरान बूथ लेवल अफसरान BLOs घर घर जाकर मरदमशुमारी फॉर्म तकसीम करेंगे और कम से कम 3 मरतबा दौरा करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि आधार की तफसीलात फराहम करना लाजमी नहीं बल्कि इख्तियारी है। नए वोटर्स जो 18 साल की उम्र मुकम्मल कर चुके हैं या 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल के हो जाएंगे, फॉर्म 6 के जरिए इंदराज करवा सकते हैं। CEO ने कहा कि इब्तदाई मरहले में किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ताहम बाद में तस्दीक की ज़रूरत पड़ने पर मुतल्लका हुक्काम मुआविन दस्तावेज़ात तलब कर सकते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मरदमशुमारी फॉर्म बरवक्त जमा कराएं और वोटर फहरिस्त को दुरुस्त और गलतियों से पाक बनाने के लिए इंतखाबी अमले से ताउन करें। मदद के लिए वोटर हेल्पलाइन 1950 या मुतल्लका बूथ लेवल अफसर से राब्ता किया जा सकता है। SIR స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ అనే కార్యక్రమం మన స్టేట్లో ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ అనే మోడ్లో ఉన్నాం. 15వ తారీఖు ఈ నెల 15 నుంచి 24 వరకు ప్రిపరేటరీ స్టేజ్ అంటే ఫామ్స్, ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్స్ని ప్రచురించడం, తర్వాత స్టాఫ్ BLOs, EROs అందరూ వారి యొక్క పరిధిలో ఉన్నారా లేదా అని ముందు తెలుసుకోవడం, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ లాంటివి పూర్తి స్థాయిగా ఇవ్వడం అనేది, ఇవి ప్రిపరేటరీ స్టేజ్. దెన్ ట్రైనింగ్స్ చాలా వరకు BLOs, AEROs, EROs, తర్వాత సూపర్వైజర్స్ ఇంక్లూడింగ్ కలెక్టర్స్ అందరికీ అన్ని జిల్లాల్లో 2-3 దశలుగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా నెక్స్ట్ రాబోయే 2-3 రోజుల్లో కూడా BLOస్కి విస్తృతంగా బాగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వమని చెప్పి కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ BLOస్ యొక్క పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది. వాళ్ళు ఎన్యుమరేషన్ ఫేజ్లో అంటే 25/6 నుంచి 24/7 వచ్చే ఈ 30 రోజుల్లో వాళ్ళు చేయాల్సిన కార్యక్రమం ఏంది, వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతలు, తర్వాత వాళ్ళు చేయాల్సిన ముఖ్యమైన అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలియజేయాలనేది ట్రైనింగ్లో వారికి పూర్తి స్థాయిలో ఇవ్వడం జరిగింది. नीट 2026 इम्तिहान इतवार 21 जून को मुल्क भर में मुनक्किद होगा। इम्तिहान के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 22.7 लाख तलबा इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा। NTA की जानिब से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक तलबा को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे इम्तिहान हाल में दाखिले की इजाज़त रहेगी। 1:30 बजे के बाद इम्तिहानी मराकज़ में दाखिला बंद रहेगा। माजूर तलबा के लिए रियायत दी जा रही है। तलबा को शाम 6:20 तक इम्तिहान लिखने की इजाज़त रहेगी। मुल्क भर के 551 शहरों, 12 बैरूनी शहरों में इम्तिहान मुनक्किद हो रहा है। इम्तिहान के लिए 2 लाख के अमले को तैनात किया गया है। हफ्ते की सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मुल्क भर में नीट के इम्तिहानी मरकज़ पर मॉक ड्रिल का अहतमाम किया गया। इससे पहले नीट पेपर की मनसूखी के बाद इस बार गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। बाज़ मुकामात पर नीम फौजी दस्तों को भी तैनात किया गया है। इम्तिहानी मराकज़ के पास भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। तलबा से वक्त की पाबंदी की दरख्वास्त की गई है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों तक ज़रूरी मालूमात और जदीद टेक्नोलॉजी पहुँचाने के लिए शुरू किए गए रैतु वेदिका और रैतु निस्तम प्रोग्राम नुमायां नताइज दे रहे हैं। इन प्रोग्रामों के ज़रिए किसानों को साइंसी काश्तकारी, नई ज़रूरी तकनीकों और सरकारी स्कीमों से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम की जा रही हैं। वज़ीर ज़राअत की खुसूसी निगरानी में जारी इस प्रोग्राम में महकमे ज़राअत और ज़रूरी माहिरीन किसानों को रहनुमाई फ़राहम कर रहे हैं। महकमे ज़राअत के डायरेक्टर मुसलसल प्रोग्राम में शिरकत करते हुए किसानों और अफसरान को ज़रूरी हिदायत दे रहे हैं। रियासती ज़रूरी यूनिवर्सिटी और महकमे ज़राअत के इश्तराक से चलाए जा रहे इस प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता 95 हफ्तों में 22,63,018 किसानों ने हिस्सा लिया और माहिरीन से बराह रास्त मशवरे हासिल किए। अब तक 200 से ज़ायद ज़रूरी मौज़ूआत पर रहनुमाई दी जा चुकी है।
जिन में धान, कपास, मकई, दालें, बागबानी, कुदरती काश्तकारी, ज़मीन की ज़रक़ैज़ी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल फार्मिंग, मवेशी पालन और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमें शामिल हैं। रियासत की 2601 रैतु वेदिकाओं में से 1600 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहूलत से जोड़ा जा चुका है, जिसके ज़रिए किसान अपने देहात से ही ज़रई साइंसदानों से राब्ता करके फसलों के मसाइल का हल हासिल कर रहे हैं। महकमा ज़राअत ने किसानों से अपील की है कि वो रैतु निस्तम प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए साइंसी तरीक़े काश्त अपनाएं ताकि ज़्यादा पैदावार और बेहतर आमदनी हासिल की जा सके। बंजारा हिल्स की बंजारा भवन में इंदिरा महिला शक्ति साड़ी तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर बराए पब्लिक इंटरप्राइजेस व अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत ख़वातीन के बाइख्तियार बनाने और फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की मुआशी, तालीमी और समाजी तरक्की के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमें मौसर अंदाज में नाफिज की जा रही हैं। तकरीब में राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र, MLC वेंकट बालामूर, GHMC कमिश्नर, मुख्तलिफ सरकारी कॉरपोरेशनों के चेयरमैन, अवामी नुमाइंदे, मुकामी कायदीन, ख़वातीन नुमाइंदगान और पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत बड़ी तादाद में मुस्तहक़ ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम की गईं। शुरका ने ख़वातीन की फलाह बहबूद और बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के इक़दामात को सराहा। तकरीब का अख्तिताम मुस्तहक़ीन में साड़ियों की तकसीम और ख़वातीन से मुलाकात के साथ हुआ। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने रियासती हुकूमत के फसलों की खरीदारी से मुताल्लिक़ हालिया फैसले पर शदीद एतराज़ करते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस हुकूमत ये फैसला वापस नहीं लेती, BRS अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। बुधन असम्बली हल्के में पार्टी जनरल बॉडी इजलास से खिताब करते हुए KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 15 रोज़ कबल किसानों से आखिरी दाने तक फसल खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब हुकूमत ने काबीनी इजलास में कोटे से ज़ायद फसल न खरीदने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर मरकज़ महदूद मकदार में खरीदारी करेगा तो बाकी पैदावार किसानों को खुले बाजार में फ़रोख्त करनी पड़ेगी, जिससे उन्हें नुकसान होगा। KTR ने कांग्रेस और BJP के अरकान पार्लियामेंट से भी किसानों के मफादात के लिए आवाज़ उठाने का मुतालबा किया। उन्होंने दावा किया कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हुकूमत ने हर दाना खरीदा, किसान बंधु, किसान बीमा और कर्ज माफ़ी जैसी स्कीमों के ज़रिए किसानों को सहारा दिया और तेलंगाना को ज़रई पैदावार में मुल्क की सफ़े अव्वल की रियासत बनाया। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में किसानों को खाद की किल्लत, बिजली के मसाइल, फसलों की खरीदारी के बहरान और ख़ुदकुशियों जैसे हालात का सामना है और किसानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए BRS अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। तेलंगाना रक्षण सेना की सदर के कविता ने भोपालपल्ली की काकतिया खनी 5 कान में गेट मीटिंग के दौरान मज़दूरों से मुलाकात की और उनके मसाइल मालूम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा कि वो तेलंगाना हुकूमत और सिंगरेणी इंतज़ामिया को 1 माह की मोहलत दे रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि 20 जुलाई तक माहाना 2 मेडिकल बोर्ड्स के इनेकाद का शेड्यूल जारी किया जाए। कविता ने खबरदार किया कि अगर 20 जुलाई तक मेडिकल बोर्ड कायम न किया गया तो वो उसी रोज़ गांधीयाई तरीके से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड्स के इनेकाद के ज़रिए ज़ैर इल्तवा 1200 मज़दूरों के तिब्बी मुआयने मुकम्मल किए जाएँ। कविता ने याद दिलाया कि खम्मम ज़िले के वेलुगुमटला में 750 मकानात को मुनहदम किए जाने के ख़िलाफ़ उनकी भूख हड़ताल के बाद 450 ख़ानदानों को मकानात के पट्टे फराहम किए गए थे। उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि सिंगारणी मज़दूरों के हुकूक़ और मेडिकल बोर्ड्स के इनेकाद के लिए ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भूख हड़ताल की जाएगी। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने BJP पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी ने रघुपति राघव राजराम के नज़रियात को फरामोश कर दिया है और गांधी के बजाय गोडसे की सोच को फ़रोग़ दे रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP अपने एजेंडे को अवाम पर मुसल्लत कर रही है और इक़्तिदार में मुस्तकिल रहने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। उनके मुताबिक इलाक़ाई जमातों को कमज़ोर किया जा रहा है और आइन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश की जा रही है।
महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 2 करोड़ मुलाजिमतों का वादा करने वाली बीजेपी मौजूदा रोजगार के मौके भी खत्म कर रही है, जबकि मुल्क की बेशतर दौलत चंद करीबी अफराद के हाथों में सिमट गई है। उन्होंने राहुल गांधी और गांधी खानदान की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में झूठी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सेकुलर वोटरों के नाम वोटर फहरिस्तों से हज़फ करने की साजिश की जा रही है। महेश कुमार गौड़ ने दावा किया कि तेलंगाना में बीजेपी की कोई जगह नहीं है और आइंदा भी कांग्रेस ही इख्तिदार में आएगी। कांग्रेस के साबिक एमएलए एम हनुमंतराव ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि केटीआर क्या सोचते हैं। वो राहुल गांधी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ मनमानी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियाँ की। हनुमंतराव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद हर गाँव में इंदिरा मकानात तामीर कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर कोई ऐसा गांव साबित हो जाए जहां इंदिरा मकानात तामीर न हो रहे हों तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा देने और सियासत छोड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के कायदे मुकर्रना महेश्वर रेड्डी ने सिंगारेड्डी के दौरे पर गए बीजेपी अरकान असम्बली और अरकान कानून साज कौंसिल को पुलिस की जानिब से रोके जाने की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में कारकुनों और मजदूरों के जख्मी होने पर तशवीश है और हुकूमत सिंगारेड्डी में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तगियों और बदउनवानियों को बेनकाब होने से रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ओबीआर माहिदों, थर्मल पावर प्लांट, सोलार मंसूबों, डीजल खरीदारी और कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट समेत मुख्तलिफ मामलात में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। 40 लाख मीट्रिक टन कोयले के मुबैना गायब होने के मामले की भी तहकीक़ात का मुतालबा किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान सिंगारेड्डी में होने वाली तमाम मुबैना बेज़ाब्तगियों की जामे तहकीक़ात हाउस कमेटी, हाजिर सर्विस जज या CBI के ज़रिए कराई जाएँ। बीजेपी रहनुमा ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान खुफिया मुफाहमत मौजूद है, जबकि बीजेपी अवामी मसाइल और हुकूमती वादों पर अमल दरामद के लिए रियासत भर में अपनी तहरीकें और एहतजाज जारी रखेगी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्के चंद्रायन गुट्टा में तरक्याती काम उरूज पर हैं। कायद मजलिस ने हफ्ते को बलदी डिवीज़न चंद्रायन गुट्टा में 161 करोड़ 9 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बल्लागुड़ा क्रिस्टल टाउन से कायद मजलिस के दौरे का आगाज़ हुआ। डिवीज़न में CC रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, बॉक्स ड्रेन, VDCC के काम मुकम्मल किए गए हैं। मुकामी अवाम की सहूलत के लिए डिवीज़न में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने दौरे के दौरान अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। दौरे में शामिल अहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसूई पर जोर दिया। मुकामी अवाम की जानिब से कायद मजलिस अकबर ओवैसी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर्स, मजलिस के सदर व मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। यौम आशुरा के मौके पर बीबी के अलम की सवारी के लिए लाए गए हाथी को अलम के रास्ते से मानूस होने हफ्ते को आजमाइशी तौर पर इस रूट पर चलाया गया। सिटी पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने पुलिस के दीगर सीनियर अहदेदारों के साथ बीबी का अलावा दबीरपुरा पहुंचकर अलम को ढट्टी पेश की। बतौर अकीदत अपना क़िरात पेश किया। उन्होंने हाथी को आजमाइशी सवारी के लिए झंडी दिखाकर बीबी के अलावे से रवाना किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर तफसीर इकबाल, डिप्टी कमिश्नर पुलिस चारमीनार जोन किरण खारे प्रभाकर, मजलिस के रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी, साबिक कॉरपोरेटर्स अलमदार वाला जाही, सुहेल महमूद कादरी, मातमी गिरोहों के नुमाइंदे, पुलिस के दीगर अहदेदार मौजूद थे। आजमाइशी सवारी के लिए कालीकट केरल से लाया गया ये हाथी श्रीदेवी पुलिस की निगरानी में बीबी के अलावे से रवाना हुआ। शेख फैज़ की कमान, अंदरून याकूतपुरा, एतबार चौक, कोटले आलीजाह, चारमीनार, गुलजार हाउस, पंजा शाह, मीरालम मंडी, पुरानी हवेली, दारुश्शिफा से होता हुआ यह हाथी अपनी मंजिल मस्जिद इलाही चादर घाट पहुंचा। सिटी पुलिस ने इन रूट्स पर ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी थीं और ट्रैफिक का रुख मुतबादिल रूट्स पर मोड़ दिया गया था। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि 10 मुहर्रम जुमा 26 जून को यौम आशुरा के मौके पर बीबी के अलम की सवारी के लिए इस हाथी को लाया गया है।
पुलिस मुहर्रम के अलम और जुलूस को पुरनज़्म तरीके से गुजारने के लिए बेहतर इंतज़ामात कर रही है। 2000 से ज़ायद पुलिस का अमला इसके लिए मुतय्यन किया गया है। शहर में अलम के दीगर जुलूसों के लिए भी पुलिस ने नज़्म व ज़ब्त के इंतज़ामात किए हैं। मुहर्रम का मॉर्निंग पीरियड 26 को खत्म होगा। उस मौके पे यहाँ पे पहली बार एक ट्रायल रन कर रहे, हाथी भी आ गए, वो कैसे क्राउड पे बिहेव होगा और कैसे रूट है, क्या क्या करने के लिए हम लोग आज ट्रायल रन कर रहे। मेरे साथ मेरा एडिशनल सीपी तफसीर और किरण डीसीपी और यहाँ का बड़े लोग, सब लोग हमारा साथ है। इस बार भी अच्छा से बंदोबस्त किया है और पुराना टाइम से यहाँ पे ये मॉर्निंग पीरियड को एक प्रोसेशन और एलिफेंट आने का एक ट्रेडिशन है। सो उसको में हम लोग इंक्लूड करके हम भी अच्छा से बंदोबस्त प्लान किया गया है और हर बार यहाँ कौन सा प्रोग्राम हो तो भी ये लोग अच्छा से सपोर्ट किया हैदराबाद सिटी पुलिस को। इस बार भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग ये मॉर्निंग पीरियड को हम लोग सपोर्ट करके किसी हादसा नहीं होने जैसे पीसफुल होने के लिए मॉर्निंग पीरियड को सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने कमिश्नर हाइड्रा AV रंगनाथ से मुलाकात की। रुकन कौंसिल ने मौसम बरसात के पेश नज़र नागहानी हालात से निमटने के लिए हिफाजती आलात के अलावा मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। रुकन कौंसिल ने कमिश्नर हाइड्रा को सदर मजलिस के प्याम से भी वाकिफ़ करवाया। रुकन कौंसिल ने इससे पहले हफ्ते की सुबह बदवेल, टीचर कॉलोनी और कट्टामेसमा टेम्पल का तफसीली दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। दौरे में शामिल अहदेदारों को अवामी मसाइल से वाकिफ़ करवाते हुए उनकी यकसुई पर जोर दिया गया। इस मौके पर मजलिस के मुतल्लिक़ा कारकुन भी मौजूद थे। रुकन कौंसिल रहमत बेग ने हफ्ते को सुलेमान नगर उर्दू मीडियम स्कूल का तफसीली दौरा किया। रुकन कौंसिल ने असातिज़ा और तलबा से भी मुलाकात की। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने हल्के में सफाई मुहिम का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने इस मुहिम के दोनों अहदेदारों को कचरे की बरवक्त निकासी और बेहतर माहौल की बरकरारी पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने कहा कि हल्के में साफ सुथरा माहौल को यकीनी बनाएं ताकि शहरियों को हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल का सामना न करना पड़े। इस मौके पर GHMC के डिप्टी कमिश्नर शफीउल्लाह और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। खैरताबाद जोन में कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार की जानिब से शुरू किए गए ग्रैंड हेल्थ चैलेंज के सिलसिले में स्पेशल योगा प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस योगा प्रोग्राम में खैरताबाद जोन के पुलिस अहदेदारों के अलावा दूसरों ने भी शिरकत की। खैरताबाद जोन DCP शिल्पावली ने सेशन की क़यादत की। एडिशनल CP क्राइम M श्रीनिवासलू ने योगा सेशन की निगरानी की। एक जालिम मां ने अपने बॉयफ्रेंड की खातिर अपने ही 2 साला बच्चे का कत्ल कर दिया। केसरा पुलिस स्टेशन हुदूद के चरियाला में ये इंधोनाक वाक़या पेश आया। शादीशुदा ज्योति के एक शख्स नवीन से नाजायज़ ताल्लुकात पैदा हो गए। ज्योति अपने इस लड़के को इन ताल्लुकात में रुकावट समझ रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए उसने अपने 2 साला लड़के हरी कृष्णा को ख़त्म करने का इरादा कर लिया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने लड़के का कत्ल कर दिया और एक कहानी घड़ी कि लड़का दौरा पड़ने की वजह से गिरकर ज़ख्मी हो गया और इसकी मौत वाक़ हो गई। इस लड़के की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गईं। इसके शौहर को अपनी बीवी के रवैये में कुछ तब्दीली देखकर शक हुआ। इसने अपने लड़के की मौत पर शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए उसका पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें ये वाज़ेह हुआ कि इसका कत्ल किया गया। पुलिस ने कातिल मां को गिरफ्तार कर लिया। इसका बॉयफ्रेंड मफरूर बताया जाता है। आमदनी से ज़्यादा महसूब असासों के सिलसिले में गिरफ्तार हुए डिप्टी डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स सुनकारी नरहरी राव की अहलिया के बैंक लॉकर से मजीद 1.5 करोड़ रुपए की रकम और जेवरात बरामद हुए हैं। ACB अहदेदार ने बताया कि 16 जून को नरहरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बैंक लॉकर्स का भी पता चला था, ताहम लॉकर्स की चाबी नहीं मिली थी। अदालत की इजाज़त के बाद बैंक के क़वायद की पाबंदी करते हुए लॉकर्स को खोला गया।
नरहरी राव की बीवी का अकाउंट शारीबंडा किनारा बैंक में था। लॉकर की तलाशी ली गई तो वहां से 1,50,00,000 रुपए की नकद रकम, 12 सोने के बिस्किट्स, सोने और डायमंड के जेवरात, तकरीबन 2 किलो बरामद हुई। ओहदेदार ने बताया कि अभी नरहरी के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल ही नरहरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया था। 12 मकामात पर धावों के दौरान नकद रकम, जेवरात और जायदादों के दस्तावेजात के बशमूल 150 करोड़ रुपए के असासों का पता चला था। नरहरी के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी हैं। उप्पल पुलिस स्टेशन के हदूद में कॉस्मेटिक की दुकान से खातून के गले से तलाई चैन छीनने की कोशिश को मुकामी लोगों ने नाकाम बनाते हुए सारिक को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि वेंकटरेड्डी नगर रामंतपुर में एक नौजवान दोपहर तकरीबन 1 बजे के आसपास दुकान में दाखिल हुआ और फेस वॉश बताने को कहा। जब संध्या फेस वॉश बता रही थी, नौजवान ने तलाई चैन छीन कर फरार होने की कोशिश की। चीखो पुकार पर मुकामी लोगों ने सारिक को पकड़ लिया और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। सारिक की शनाख्त याचारम के साकिन बी श्रीनिवास की हैसियत से की गई है और वो SR नगर के एक हॉस्टल में रहा करता है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। चारमीनार टास्क फोर्स पुलिस ने कदीम मलकपेट के वाहिद नगर में अदरक लहसुन पेस्ट की तैयारी के कारखाने पर धावा किया है। बताया जाता है कि अदरक लहसुन का पेस्ट इंतहाई नाकिस और गैर मियारी माहौल में केमिकल के इस्तेमाल के जरिए तैयार किया जा रहा था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट तैयार करने वाली मशीनों और पैकिंग मटेरियल को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये पेस्ट मुख्तलिफ दुकानों और स्टोर्स को सरबराह किया जा रहा था। पुलिस ने अवाम से भी अपील की है कि इस तरह के गैर मियारी माहौल में तैयार किए जाने वाले अदरक लहसुन के पेस्ट के इस्तेमाल से गुरेज करें। ये सेहत के लिए भी नुकसानदा हो सकता है। नारसंगी की अलकापुर टाउनशिप में गैस सिलेंडर के फटने से एक खातून जख्मी हो गई। धमाका इतना शदीद था कि तीसरे फ्लोर की बालकनी की दीवार मुनहदिम हो गई। 49 साल गीता नामी खातून इसमें जख्मी हुई हैं। इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। राजेंद्र नगर डीसीपी श्रीनिवास की टीम ने शीरख्वार बच्चे को बरवक्त CPR फराहम करते हुए उसे होश में लाया। बताया जाता है कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर बेकाबू कार दरख्त से टकरा गई थी। कार में 1 साला बच्चा भी मौजूद था और बच्चे की सांस रुक गई थी। पेट्रोलिंग पर मौजूद डीसीपी की टीम फौरी मुकाम वाक़या पहुंची और बच्चे को CPR दिया गया। सांस बहाल होने के बाद इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। RTA हुक्काम की तरफ से राजस्थान जाने वाली खानगी बस को जब्त किए जाने से 50 से ज़्यादा मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि बस राजस्थान जा रही थी। RTA हुक्काम ने बस रोककर तलाशी ली। मौसर दस्तावेजात न होने पर बस को जब्त कर लिया गया और इसे RTA ऑफिस ले जाया गया। मुसाफिर रात भर RTA ऑफिस में ही बैठे रहे। उनका कहना था कि उनकी रवानगी का कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया गया। RTA हुक्काम पर भी नाराजगी जाहिर की गई। मलकाजगिरी पॉक्सो की अदालत ने बंडी भगीरथ को 7 दिन की अबूरी जमानत दे दी है। वाज़ेह है कि पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में बंडी भगीरथ के खिलाफ पॉक्सो का केस दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि इम्तिहान में शिरकत के लिए बंडी भगीरथ को मशरूत तौर पर अबूरी जमानत दी गई है। रंगारेड्डी की खुसूसी पॉक्सो अदालत ने 84 साला साबिक सरकारी मुलाजिम को 12 साला लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी का कसूरवार करार देते हुए 21 साल कैद की सज़ा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक वेंकटरमणा ने चॉकलेट दिलाने के बहाने जहनी तौर पर मुतासरा 12 साला लड़की के साथ इस्मत रेजी की थी। ये वाक़या मार्च 2023 में चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया था। पुलिस ने वेंकट नारायण को तहवील में लेकर अदालत की कार्रवाई की थी। अदालत ने उम्र कैद के अलावा मुतासरा लड़की को 4 लाख रुपए मुआवजा भी अदा करने की हिदायत दी है।
اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ QMax کرسٹل اکبر باغ ملک پیٹ، QMax خزرہ ہمایوں نگر رائل کالونی، QMax پارک ویو پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، QMax مجیب الکاپور مین روڈ، QMax امپیریل عزیزیہ مسجد مہدی پٹنم، QMax گیلیکسی پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، QMax امیزا عزیز باغ شیخ پیٹ، QMax عارف آرکیٹ الکاپور مین روڈ، QMax خادری ستیہ کالونی شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ٹولی چوکی حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس۔ درگاہ روڈ شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملا پلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ریاست تلنگانہ میں شروع ہونے والے SIR کے لیے انتظامات مکمل، عوام سے تعاون کی ریاستی الیکٹورل آفیسر نے کی اپیل، ووٹر فہرستوں کو درست اور شفاف بنانے کے لیے مہم۔ اتوار 21 جون کو ہونے والے نیٹ امتحان کے لیے غیر معمولی انتظامات، پولیس کی چوکسی، 22 لاکھ سے زیادہ طلباء کی شرکت متوقع۔ دوپہر 1:30 بجے کے بعد امتحانی مراکز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فصلوں کی خریداری میں حکومت ناکام، کسانوں کی خودکشی باعث افسوس، 25 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے، KTR کا مطالبہ۔ بوائے فرینڈ کی خاطر ظالم ماں نے اپنے 2 سالہ بیٹے کا کیا قتل، کیسرا پولیس اسٹیشن حدود میں شرمناک واقعہ، ملزمہ گرفتار، عاشق مفرور۔ ملاوٹی ادرک لہسن پیسٹ کی تیاری کا ایک اور کارخانہ بے نقاب، قدیم ملک پیٹ کے واحد نگر میں بھاری مقدار میں ملاوٹی پیسٹ ضبط۔ اور لینڈ سروے محکمے کے عہدیدار کی بیوی کے بینک لاکر سے 1.5 کروڑ روپے کی نقد رقم اور زیورات برآمد، ACB کی تحقیقات جاری۔ ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا سلسلہ آج ہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت، دیکھتے رہیں 4 TV نیوز۔ خدا حافظ۔